4 and we have discussed up to Edmund Spenser. We have discussed Chaucer, we have discussed Middle and Old English and then Chaucer. After Edmund Spenser means we are reaching to Renaissance, full-fledged Renaissance, where some important authors, poets and playwrights are waiting for us. Before you can say doing any advancement in this lecture, I want to discuss Scottish Chaucerian only within 1 minute. They were flourished in 15th and 16th century in Scotland. That's why they are known as Scottish. Second one, we have discussed English Chaucerian. They were Stephen Hawes, Hawkley, Skelton, Liggett, but we are discussing now Scottish Chaucerian. There were 4 major names. The first one was King James I, whose King Square written in Rhyme Royal, very famous. Why they are known as Scottish Chaucerian? Because we found and we feel the influence and impact of Geoffrey Chaucer over these poets. So that's why they are known as Scottish Chaucerian. Second one is Robert Henryson. Third one is William Dunbar. Fourth one is Douglas Gawain. Some other minor poets were also there, but the major Scottish Chaucerian, these 4 poets were there and they are known Scottish Chaucerian. और जो हेनरीसन का है that is Testament of Cressida और किंग स्क्वेयर बाय किंग जेम्स, ये काफी फेमस है. तो ये 2 वाक हमने याद रखने हैं. इसके अलावा जो है एक जो डनबर का वाक है दैट इज लेमेंट फॉर Maccabees. It is also famous. If there will be any question from Scottish Chaucerian, it is much possible कि 99% you will find from there. 4 names you are to keep in view: King James, King Square, and that's why this technique is known as Rhyme Royal technique, as we have discussed it when we discussed Geoffrey Chaucer. Robert Henryson, Testament of Cressida. William Dunbar, Lament for Maccabees, and 4th one is Douglas Gawain. इसके अलावा भी poets थे, but they were minor poets. These are the major poets. अब बात करते हैं हम आगे की. Friends, now we are going to discuss about Renaissance. We have discussed about Renaissance when we discussed Spenser also. अब हम कहां पहुंच रहे हैं? Origin of English drama. इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ड्रामा डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर रेनेसांस. ड्रामा existed in England even 10th century also. Whenever we discuss about drama, whatever the language and whatever the nation is, it is always associated with religion. If we take the case of India, इंडियन ड्रामा की बात करें तो कहां से शुरू करते हैं? शुरू करते हैं भरत मुनि नाट्यशास्त्र. नाट्यशास्त्र इज कंसिडर्ड 5th वेद और ऐसा माना जाता है
Brahma created this beautiful Granth. He selected the important material from all the 4 Vedas and then created the 5th one, that is known as नाट्य शास्त्र। और इसमें जो हम देखते हैं प्रोसिनियम थिएटर, सबसे पहले थिएटर को बनाएं कैसे, गॉड की जो है वर्शिप कैसे करें, डिस्टेंस क्या हो, आर्किटेक्चर ऑफ नाट्य शास्त्र, दैट इज मेंशन इन चैप्टर नंबर 4 ऑफ नाट्य शास्त्र। तो हमने यहां पर क्या देखा कि रिलीजन के साथ जो है ड्रामा का ओरिजिनेशन है। जब इंडिया में ऐसा है, चाहे आप दुनिया के किसी भी नेशन की बात करें, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, इफ यू विल टॉक अबाउट ग्रीक, इफ यू विल टॉक अबाउट रोमन थिएटर, यू विल फाइंड दिस थिंग ईच एंड एवरीवेयर। तो दैट्स व्हाई इंग्लिश ड्रामा ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिलीजन। पहले जब हम देखते हैं 10th सेंचुरी के आसपास, इन 10th सेंचुरी the drama was there. It was associated with church at that time. It was associated with church. Especially 2 टर्म्स के ऊपर जो है काम हुआ है। The one is Annunciation। इसका मतलब क्या है? When King Gabriel announced that Mary is the mother of Christ, ठीक है ना। एक तो इस इंसिडेंट को काफी एक्सप्लॉइट किया गया है। द सेकेंड वन इज असेंशन। असेंशन का मतलब है अराइवल ऑफ क्राइस्ट इन हेवन। अराइवल ऑफ क्राइस्ट इन हेवन। तो ये 2 टर्म है। अब देखिए ये 2 जो चीजें हैं, ये मेजर जो है थीम रहे उस टाइम। चर्च के साथ जो है ड्रामा वो रिलेटेड था, ये आपको अच्छे से पता है। और जो है ट्रोप प्ले जो है रॉबिन हुड प्लेज, रॉबिन हुड प्लेज वो जो है काफी उस टाइम पे फेमस रहे हैं आपके। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो एक और जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रहती है, दैट इज मेपोल डांसेज। ये ड्रामा कब था? ये 10th सेंचुरी का था, बट इट फ्लरिश्ड इन फुल स्विंग इन 12th सेंचुरी। Though at that time the language was Latin, the language was Latin। अब जो है 15th सेंचुरी तक आते आते ये लैटिन लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। और जो ड्रामा था इट केम आउट फ्रॉम द चर्च। जो ड्रामा का जर्नी क्या रहता है, एज यू नो वेरी वेल, फर्स्ट चर्च, churchyard and then marketplace, closely associated with religion, closely associated with religion। अब यहां तक हम आते हैं 15th सेंचुरी के आसपास तक। ये चीजें हैं जो पहले जो ड्रामा था दैट वाज लिटर्जिकल प्लेज, हमने देखे मम्मर्स प्लेज। अब इन सब की खासियत क्या है कि दे वर क्लोजली एसोसिएटेड विद बाइबल, क्लोजली एसोसिएटेड विद क्राइस्ट, क्लोजली एसोसिएटेड विद क्रिश्चियनिटी रिलीजन। ये अब इसके बाद जो है हम आते हैं, धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब देखिए जो लिटर्जिकल ड्रामा है
उसमें कहा थीम क्या रहते हैं हमारे, जो थीम रहते हैं बेसिकली वो रहते हैं हमारे क्रिएशन टू फॉल और लास्ट जजमेंट, मतलब बिब्लिकल, किसकी बात हो रही है, बाइबल की बात हो रही है। तो ये जो है बेसिक थीम्स थे हमारे। तो हम इस तरीके से करते करते जो है यहां पर आते हैं। अभी ड्रामा कहां है, चर्च के अंदर है। शुरू में लैटिन लैंग्वेज था, चर्च से चर्च यार्ड में आया। तो हमारा जो लिटर्जिकल प्लेस है वो जो है क्रिएशन टू फॉल ऑफ और लास्ट जजमेंट, यहां तक थीम जो है वो आपका रिप्लेस हुआ और ये चर्च यार्ड में आया और लैटिन लैंग्वेज से वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो है ये आ गया। अब यहां से हम जो है बेसिकली कहां जाते हैं, यहां से हम बेसिकली जाते हैं जो एक टर्म आती है दैट इज मिरेकल प्ले। When we talk about miracle play, along with that we also talk about mystery play, and in some books also these two terms are used alternatively, कि जो miracle play है और उसके बीच में लिख देते हैं और mystery play, but there is a difference between miracle play and जो है mystery play, ठीक है ना, morality play, सॉरी। तो morality और miracle में डिफरेंस रहता है। तो जो मिरेकल प्ले है ये क्या है, बिब्लिकल थीम इनका रहता है। एसोसिएटेड विद चर्च, ठीक है ना, थीम रिलीजियस है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। और जो क्राइस्ट है उसका ही ज्यादा रहता है और फीमेल कैरेक्टर नहीं होते हैं, कोई भी फीमेल कैरेक्टर होता नहीं है। और जो तरीका रहता है इनका वो रहता है क्राइस्ट, क्रिस्टी डे और उसको क्या बोलते हैं, विटसन। बेसिकली दीज टू ओकेजन वर कंसिडर्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट फॉर ड्रामा। तो ये जो है हमने वहां पर देखा, इसको मिरेकल प्ले बोलते हैं। अब जो मिरेकल प्ले है वो फुल फ्लैज हमारे पास काफी सारे अवेलेबल हैं उस टाइम पे। किस तरीके से जो है इनका थीम रहा, क्या रहा, इसको डिटेल में बात करें तो इसके ऊपर काफी बात हो सकती है। बट हमने क्या करना है, वी आर टू डिस्कस द थिंग्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वी आर टू फाइंड आउट ओनली दोज फैक्ट्स विच आर वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड विच आर यू कैन से हैविंग सम पॉसिबिलिटी टू बी आस्क्ड इन एग्जाम। तो दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए इसके बाद की बात करें, दो ये ओकेजन मैंने बताए, क्राइस्ट, क्रिस्टी और विटसन, जो बेसिकली ये किए जाते थे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे वर परफॉर्म्ड ऑन वैगन्स। जैसे आज आप थिएटर में जाओगे तो एक वेल बिल्ट थिएटर होता है और उसका जो आगे ऑडियंस के लिए बैठने के लिए जगह होती है, लाइट होती है, कर्टेन है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, ठीक है ना। और वो सारा डिसाइड किया जाता है, ग्रीन रूम कहाँ होगा, एग्जिट, एंट्री, ठीक है ना। और जो ऑडियंस का थिएटर का जो पोडियम है उससे डिस्टेंस कितना रहे, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। बट एट दैट टाइम नो वेल बिल्ट थिएटर वाज देयर। जो स्टेज का काम करते थे वो वैगन करती थी, ठीक है ना। एक वैगन के ऊपर एक सीन था, अब सीन शिफ्ट किया तो दूसरे नंबर का वैगन आ गया। इस तरीके से ये चलता था, मोबाइल थिएटर यू कैन कॉल इट। अब इसको बोलते थे, दीज वैगन्स वर नोन एज पेजेंट। इन वैगन्स को क्या बोलते थे, जो मोबाइल थिएटर होते थे, स्टेज होते थे, उसको पेजेंट बोलते थे। एक वैगन के ऊपर एक सीन चलता था, दूसरा सीन आया दूसरे वैगन के ऊपर, इस तरीके से जो है ड्रामा होता था। ये कब की बात है, ये हम बात कर रहे हैं मिरेकल प्लेज की, ये मिरेकल प्लेज की बात कर रहे हैं। और मिरेकल प्ले का जो थीम है दैट इज एब्सोल्युटली बिब्लिकल। वहां का जो भी आपका थीम रहता है वो बाइबल से उठाया जाता है। वहां जो बिब्लिकल कैरेक्टर्स है उनकी लाइफ को जो है एक्सप्लोइट किया जाता है। क्राइस्ट, रेसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, बर्थ, वो सारी की सारी जो है थीम्स वो एक्सप्लोइट किए जाते हैं इन जो है प्लेज में।
अब इसके बाद जो है कुछ आपको पता होगा कि हमारे पास जो मिरेकल प्लेज है फुल फ्लैज साइकिल्स अवेलेबल है। अब वो काफी सारे प्लेज हैं, किस साइकिल में कितने प्ले थे, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। तो सबसे पहले जो है नंबर 1 इज चेस्टर साइकिल, यॉर्क, वेकफील्ड, हो गया, और एक आध और रहता है कोवेंट्री, और इस सीरीज में सिर्फ एक प्ले अवेलेबल है इस टाइम, कोवेंट्री वाले में सिर्फ एक ही प्ले अवेलेबल हमारे पास है। और एक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लूडस, और इसका जो है कॉन्वेंट्रिएट, ये भी एक साइकिल है। इसमें हमारे पास 44 प्ले जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा जो चेस्टर है, चेस्टर में हमारे पास 24, यॉर्क में हमारे पास 48 प्लेज अवेलेबल है, और वेकफील्ड जो है हमारा इसमें 32 प्लेज अवेलेबल है। और इसको टाउनली साइकिल ऑफ प्लेज भी बोला जाता है, सी रह गया सॉरी, इसको साइकिल जो है टाउनली जो है साइकिल ऑफ प्लेज भी बोला जाता है। और जो कोवेंट्री है इसमें सिर्फ 2 प्लेज अवेलेबल है। ये जो है ये पूरा साइकिल 54 प्लेज का माना जाता है, बट ओनली 48 आर अवेलेबल, ओनली 48 आर अवेलेबल। चेस्टर 24 प्लेज आर अवेलेबल, यॉर्क available 48, total number of plays 54, Wakefield also known as Townley cycle 32 plays are available, Coventry only 2 plays, no only 1 play, and the last one is Ludus Conventriate where 44 plays are available. Sometime we find in exam वो कोई भी 3 तो इनमें से उठाएगा, एक कोई अलग नाम उठाएगा और पूछेगा इनमें से कौन सा जो है मिरेकल जो प्लेज हैं उनके साइकिल में से नहीं है। तो हमने याद रखना है चेस्टर, यॉर्क, कवेंट्री, वेकफील्ड और लूडस कन्वेंट्रिएट। तो ये कितने हो गए 5। उसके बाद कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमने नंबरिंग याद रखनी है। जो आपका यॉर्क है 24 है, चेस्टर 24, यॉर्क 48, टोटल नंबर ऑफ प्लेज वर 54, अवेलेबल 48। उसके बाद वेकफील्ड की बात करें 32, उसके बाद जो है कवेंट्री की बात करें ओनली 2 प्लेज, नो की बात करें ओनली 1 प्ले, एंड लूडस कन्वेंट्रिएट की बात करें तो 44 प्लेज। ये चीज आपने नोट कर लेनी है और इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके साथ मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस you should visit YouTube channel also, Academic Zone YouTube channel, where so many MCQs we have discussed through videos. MCQ है वहां पर आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप वो MCQ साथ में जो है वो देखते रहे। उससे क्या होगा कि एक तो ये पॉइंट्स तो हम कर ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, उसके साथ एक प्रैक्टिस रहेगा, आपका MCQ का एक प्रैक्टिस रहेगा। अब बात करते हैं, हमने जो है शुरू में किसकी बात की, चेस्टर की बात की, चेस्टर प्ले। चेस्टर प्ले स्टार्ट्स विद द फॉल ऑफ लूसीफर। ये लूसीफर कौन है? लूसीफर सैटर्न है। इनका जब हेवन से एक्सपेल हुआ उससे पहले तक ही वॉज नोन एज लूसीफर। यहां से स्टार्ट होता है, लूसीफर जो है फॉल ऑफ लूसीफर से स्टार्ट करते हैं और लास्ट का जो है दैट इज एंड्स विद डूम्सडे। डूम्सडे कई बार इस तरीके से भी पूछ लेता है, तो ये भी चीज हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसमें और कौन से हैं? इसमें जो है थीम क्रिएशन है, फॉल है, क्रिएशन की बात करेंगे। क्रिएशन का मतलब है किस तरीके से दुनिया क्रिएट हुई, जैसा कि बाइबल में आपको पता है एडम एंड ईव जो है हमारे
पेरेंट्स माने जाते हैं, उसमें कुछ कैरेक्टर्स की भी बात होती है, बिब्लिकल जो कैरेक्टर है उसमें नोह है, केन है, अबेल है, तो इस तरीके के कैरेक्टर्स की भी बात इन प्लेज में चेस्टर वाले साइकिल में होती है। तो ये चेस्टर जो प्लेज है पूरा मैंने आपको खोल के बताया है ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। टोटल 5 साइकिल्स की बात की है जिसमें हमने सबसे पहले चेस्टर, यॉर्क, वेकफील्ड, कवेंट्री, नो, कन्वेंट्रिएट, लोडस, कन्वेंट्रिएट। उसके बाद नंबरिंग की बात हुई थी 24, 48, 32, 2, 1, 44। तो इस तरीके से आपको चीजें टिप्स पे हो जाएंगे एक दो बार जब आप लेसन को सुनोगे और देखोगे। इसके साथ साथ मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने पहले लेसन में भी बोला था आपको, जो भी चीज हम डिस्कस करें लेसन में उससे पहले यू शुड गो थ्रू एनी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम दैट वेरी टॉपिक, समथिंग यू विल गेट आउट ऑफ दैट बुक and then many more things you will get out of the lesson, and then convergence of both things is equal to common understanding। तो फिर उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम कुछ एमसीक्यूज पढ़ लें तो वो टॉपिक क्वाइट क्लियर हो जाता है। अब वहां से वो कुछ भी पूछे तो हम 95% वी आर कैपेबल टू टैकल द क्वेश्चन इन पॉजिटिव वे। तो इसके बाद जो है हम बात करेंगे इसका टेक्निक क्या थी। जो चेस्टर प्लेज है दे वर रिटन इन 8 लाइन स्टैंजा, दे वर रिटन इन 8 लाइन स्टैंजा, टोटल 5 साइकिल्स वर देयर। अब इसके बाद जो है बात आती है हमारी मोरलिटी प्ले की। क्या बात आती है मिरेकल के बाद? मोरलिटी प्लेज। अब जो मोरलिटी प्लेज की बात कर रहे हैं हम, तो इससे पहले मिरेकल की बात की। आई टोल्ड यू कि मिरेकल प्लेज द थीम वॉज बिब्लिकल, बट हियर द थीम शिफ्टेड फ्रॉम बिब्लिकल टू वर्ल्डली वर्च्यूज एंड वाइसेज। वर्ल्डली और ह्यूमनली कह सकते हो, वर्च्यूज एंड वाइसेज। अब जो है ड्रामा धीरे 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 जो है वो फ्लरिश कर रहा है, डेवलप हो रहा है और चीजें नई नई आ रही हैं, ऐड हो रही हैं। अब यानी कि जो बिब्लिकल थीम था उससे बाहर आया और ह्यूमनली, वर्ल्डली, वर्च्यू, वाइस, जिसमें क्या है आपके जो भी पीस है, पीटी है, डेथ है, वो सारी चीजें जो है यहां पर इनके ऊपर काम होने लगा, इनके ऊपर प्लेज जो है वो एक्ट होने लगे, स्टेज होने लगे। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, कई बार इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिरेकल एंड मोरलिटी प्ले। इन मिरेकल प्ले थीम इज बिब्लिकल, इन मोरलिटी प्ले जो थीम है वो शिफ्ट करके कहां आ जाता है, वर्च्यूज एंड वाइसेज के ऊपर थीम आ जाता है। तो जिस तरीके से हमारे पास मिरेकल प्लेज अवेलेबल है तो कुछ मोरलिटी प्लेज भी अवेलेबल हमारे पास हैं। और अब देखिए, अब यहां पर जो इनका मेजर थीम है वो क्या है, 7 डेडली सिंस, 7 डेडली सिंस। जब हम एवरी मैन की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट द मेजर मोरलिटी प्ले दैट इज अवेलेबल राइट अवे इज एवरी मैन, एंड व्हेन वी विल डिस्कस द थीम और द समरी और द प्लॉट ऑफ एवरी मैन देन वी विल डिस्कस 7 डेडली सिंस आल्सो, कि हाउ देयर इज अ स्ट्रगल और कंट्रास्ट बिटवीन 7 डेडली सिंस, गुड डीड्स एंड नॉलेज, वो हम देखेंगे एवरी मैन के साथ क्या होता है। तो ये 7 डेडली सिन जो है ये अभी थीम है, किसका थीम है, मोरलिटी प्ले का है। मिरेकल का क्या था, वो बिब्लिकल थीम था। ये चीज हमने यहां से ध्यान रखनी है। अभी जैसे मर्सी है, पीस है, डेथ है, इन सारे जो है पॉइंट्स की यहां पर बात होगी मोरलिटी प्लेज में, तो ये सारी चीजें हमने ध्यान यहां से रखनी है। अब इसके बीच में कुछ प्लेज हैं और ये प्लेज जो है मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पीटर नेस्टर प्ले। अब जो पीटर नेस्टर प्ले है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मोरलिटी प्ले की बात कर रहे हैं। अब ये जो है ज्यादातर प्लेज और ये खासकर इट डील्स विद 7 डेडली सिंस की बात हो रही है। ये प्ले
इससे बिलोंग करता, जब इससे बिलोंग करता है तो देयर इज नो डाउट इट इज अ मोरालिटी प्ले, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, ठीक है ना। और इसका जो है देखिए यहां पर जिस भी प्ले की बात होगी उसके जो डेट है उसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है, बिल्कुल सर्टेन नहीं है, बट इट इज कंसिडर्ड दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड इन 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी का ये प्ले रहा होगा और डेथ एंड पीस इसका थीम रहा है। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है। अब दूसरा देखना है, एक और मोरालिटी प्ले हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज प्राइड ऑफ लाइफ। अब देखिए इनकी जो ऑथरशिप है दैट इज अनोनिमस, जो ऑथरशिप है वो क्या है, अनोनिमस है। अब इसमें क्या है, किंग है, ये बोस्ट करता है अपनी पावर की, यही इसका थीम है कि हाउ ही बोस्ट ऑफ हिज पावर और वर्ल्डली पावर, यानी कि क्योंकि वर्चूज और वाइसेज की तो बात हो ही रही है, बिब्लिकल थीम से जो ये चीजें बाहर आ गई हैं। और देखिए अब क्या है, इसके अलावा दो प्ले खास फेमस हुए हैं इस टाइम के और जो हमारे पास अवेलेबल भी, एक तो एवरीमैन एज आई टॉक एंड द सेकंड वन इज द कैसल ऑफ प्रेजर्वेंस, द कैसल ऑफ प्रेजर्वेंस एंड एवरीमैन। If I talk about the castle of Preservance, ये माना जाता है कि 1425 इसका कहीं डेट रहा होगा एंड देयर आर 34 कैरेक्टर्स और एक मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है हमारे पास और उसका नाम है मैक्रो। एमएस का मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैक्रो जो मैन्युस्क्रिप्ट स्टिल इट सर्वाइव्स, इट हैज 3 प्लेज बेसिकली। एक तो उसमें क्या है, विजडम है, विजडम जो प्ले है, एक आपका कैसल ऑफ परजर्वेंस है और इसके अलावा जो तीसरा आपका है दैट इज मैनकाइंड। टोटल 3 प्लेज हैं, 1, 2 एंड 3, बट द बेस्ट वन एंड पॉपुलर वन इज द कैसल ऑफ परजर्वेंस, वेयर वी फाउंड 34 कैरेक्टर्स staged in 1425, total 3 plays found in Macro's MS and Wisdom, Mankind, The Castle of Perseverance। ये चीजें जो है हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर मोरालिटी प्ले जो सर्वाइव अभी भी है एग्जिस्टेंस जिसका है, दैट इज एवरीमैन। जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनमें 80% बुक्स में ओनली एवरीमैन इज डिस्कस्ड। तो रेस्ट ऑफ द मोरालिटी प्लेज एंड रेस्ट ऑफ द मिरेकल प्लेज वो सिर्फ साइकिल्स की बात करते, बाकी चीजें छूट जाती। बट वी मस्ट नो एवरीथिंग इन डिटेल बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क। और पिछले 2-3 एग्जाम से एक चीज और हमने जो है फील किया, आपने भी फील किया होगा कि आजकल जो है, पहले क्या होता था, जो मेजर पॉइंट्स होते थे वो पूछे जाते थे, जो है आप कहो कि मेजरली नोन फैक्ट्स, बट नाउअडेज वी फाइंड द लेस नोन फैक्ट्स और द माइनर फैक्ट्स आल्सो। तो इसलिए हर चीज को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत पड़ती है। अब एवरीमैन क्या है, एवरीमैन मतलब कॉमन मैन, समन्ड बाय डेथ। ये थीम बता रहा हूं मैं इसका। अब क्या है, लास्ट टाइम है, बात मरने की है। जैसे कि इंडियन मिथोलॉजी में भी काफी सारे वाल्मीकि, किस तरीके से वाल्मीकि बने, जब नारद मुनि ने उनसे पूछा भाई आप मेरे को क्यों लूट रहे हो, पूछ के आइए जो आप ये पाप कमा रहे हो, क्या आपके घर वाले इसमें भागीदार होंगे। वो जाता है, पूछ के आता तो वो लोग मना कर, वगैरह वगैरह वगैरह। आप किसी भी लैंग्वेज को उठा के पढ़िए, मिथ जो है वो काफी कुछ सिमिलरिटी मिलती है वहां पर। जितने भी एपिक्स हैं, वेदर इट इज इलियड, ओडिसी, पैराडाइज लॉस्ट और इंडियन यू कैन से एपिक्स, महाभारत, रामायण,
चाहे आपका एलिड रहा हो वर्जिल का, इनमें काफी सारी सिमिलरिटीज मिलेंगी। कैरेक्टर्स अलग होंगे, एक बैटल होगा, वॉर होगा, इस तरीके से रिलीजन की लड़ाई होगी, इस तरीके से चीजें होती हैं, तो काफी सारी सिमिलरिटी होती है। अब यहां पर भी सिमिलरिटी है। अब समन्ड बाय डेथ, अब ये देखता है नो वन इज रेडी टू अकंपनी हिम, क्योंकि लास्ट में तो हमें अकेला ही जाना होता है मरने के लिए। नो वन इज रेडी टू अकंपनी हिम, बट ओनली एक चीज रेडी होती है, दैट इज हिज गुड डीड्स। अब क्या है, जो गुड डीड्स हैं वो रेडी होती है क्या करने के लिए, टू बी द गाइड ऑफ एवरी मैन, कि यस वी आर रेडी टू गाइड यू। लेकिन अभी क्या होता है, देयर इज नॉलेज ऑल्सो। अब नॉलेज के साथ 7 डेडली सिंस। अब ये 7 डेडली सिंस जो है वो किसी तरीके से जो गुड डीड्स है इनको रोकने की कोशिश करते हैं, बट ये सारा फिर नॉलेज का कॉन्सेप्ट आता है, नॉलेज का अपना वो रहता है। लेकिन लास्ट में जब कंक्लूड करते हैं, ये टूम है, ग्रेव है, ग्रेव लिखेंगे रादर, एवरी मैन इज गोइंग टू एंटर द ग्रेव। अब यहां पर क्या है कि जो नॉलेज है वो यहां पे खड़ा हो जाता है बाहर, बस कि मैं आपके साथ सिर्फ यहां तक आ सकता था। लास्ट में इसका जो लास्ट तक रहता वो कौन रहता, गुड डीड्स। कहां गया, ये रहा गुड डीड्स कि, और एट लास्ट क्या होता है, द एवरी मैन एंटर्स हिज ग्रेव। दिस इज द थीम ऑफ दिस प्ले एंड इट इज नोन एज मोरलिटी प्ले। इट इज नोन एज मोरलिटी प्ले। ये मोरलिटी प्ले था, और हम धीरे धीरे लिटर्जिकल प्ले, ममर्स प्ले, और उसके बाद हम कहां पर पहुंचे, मिरेकल प्लेज पर पहुंचे। मिरेकल के बाद हम मोरलिटी के ऊपर आए, थीम कैसे शिफ्ट हो रहा है, लैंग्वेज कैसे शिफ्ट हो रहा है, चर्च से चर्च यार्ड तक आए, और अब हम जो है मार्केट प्लेस में आए हैं। धीरे धीरे अब ड्रामा कहां जा रहा है, प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी तक भी फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है। फीमेल का यदि रोल प्ले करना है, दैट इज प्लेड बाय द मेल एक्टर्स। वैगन्स की बात हो रही है, वो सारी चीजें हैं। अब देखिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, नेक्स्ट इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है आपका इंटरल्यूड का। आपने पढ़ा होगा इंटरल्यूड। ये इंटरल्यूड क्या थे, एक्चुअली जो ब्रिज है ये ब्रिज का काम करते हैं। जो हमारा मॉडर्न ड्रामा है उसका और मोरलिटी प्ले का बीच का जो ब्रिज है उसका काम करते हैं इंटरल्यूड। इनका भी जो है अभी क्या है, ये रियलिस्टिक टाइप ड्रामा था, इसमें ह्यूमर भी था। अब जो ह्यूमन कंडीशन है, मैन की जो कंडीशन है, दैट इज यू कैन से डिस्क्राइब्ड, एक्सप्लेन्ड और पोर्ट्रेट इन दीज प्लेस। इनको इंटरल्यूड बोला गया। अब ये जो इंटरल्यूड है, कभी कभी इंटरल्यूड की पहले जो प्रॉपर जो ट्रेजेडीज वगैरह होती थी या कोई भी प्ले होता था उसके बीच में फिलर के लिए भी इंटरल्यूड्स हुए हैं। अब हम इंटरल्यूड के ऊपर पहुंचे, तो इंटरल्यूड में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, और दे आर पाविंग द वे फॉर द मॉरल, क्या बोलते हैं उनको, यूनिवर्सिटी विट्स। और यूनिवर्सिटी विट्स दे विल इस्टेब्लिश द स्टेज, दे विल इस्टेब्लिश द ग्राउंड, द प्लेटफॉर्म फॉर द एलिजाबेथन्स, जो प्रॉपर, जिसकी हम शेक्सपियर और बेन जॉनसन की लेटर बात करेंगे। तो अभी इंटरल्यूड की यदि हम बात करें, अब इंटरल्यूड क्या है, रियलिस्टिक एलिमेंट्स है, कॉमिक एलिमेंट्स है, ये भी 15th सेंचुरी में जो है होता है। अब कुछ लोग यहां पर हैं, 3 लोगों की बेसिकली बात करेंगे, जिसमें आपके रेस्टम, थॉमस मूर, और एक जो है आपके रेस्टल हो गए, मूर हो गए, एक नाम और जो है, हाँ, थॉमस हेवुड। ये जो नाम है थॉमस मोर, बेसिकली नोन फॉर हिज प्रोज दैट इज यूटोपिया।
विच वॉज रिटन बेसिकली इन लैटिन लैंग्वेज। ठीक है ना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इंटरल्यूड में इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, ड्रामा में इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं। अब एक और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अलावा, दैट इज हेनरी मैडवॉल। अब जो हेनरी मैडवॉल है उनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज, ये एक मोरलिटी प्ले है बेसिकली। लिक्विड्स, बेसिकली इट्स मोरलिटी प्ले, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट तो एलिमेंट्स इनके अंदर है, रियलिस्टिक एलिमेंट भी आए हैं, ह्यूमर एलिमेंट भी आए हैं, ह्यूमन कंडीशंस की भी बात हो रही है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट इनके अंदर रहते हैं, ये सारे हैं। अब इन तीन लोगों में खास बात क्या है, इन तीन लोगों में खास बात है कि ये तीनों के तीनों जो लोग हैं ये एसोसिएटेड थे कार्डिनल मॉर्टन, इसके साथ। अब इनके अलावा ये चीजें तो हो गई, इनका कंट्रीब्यूशन, इनके वर्क्स जो इंपॉर्टेंट हैं उसमें क्या है, द नेचर ऑफ द फोर एलिमेंट्स, मैं डिजिट लिख रहा हूं 4, इट्स अ वर्क, द नेचर ऑफ 4 एलिमेंट्स, और ये किसका वर्क है, इट इज रिटन बाय जॉन रस्टल, इट इज रिटन बाय जॉन रस्टल, तो इट्स एन इंटरल्यूड। अब उसके बाद बारी आती है आपकी टॉमस हेवुड की, और टॉमस हेवुड की बात करें, विटी एंड विटीज, इट्स एन इंटरल्यूड रिटन बाय टॉमस हेवुड। और इसके बाद द प्ले ऑफ द वेदर, और जो सबसे फेमस है दैट इज 4 P's, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी नेट में क्वेश्चन आया था। 4 P's कौन कौन है, पामर, पैडलर और आपका जी पार्टनर, अपोथकैरी। ये 4 लोगों की यहां पर बात है। अब इसमें हमने देखना क्या है, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है आपका, उसमें जो पैडलर है ये एक जज है, बाकी के जो ये 3 लोग हैं, देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन दीज 3 पीपल ऑफ टेलिंग लाइज। 3 लोगों में झूठ बोलने का कंपटीशन होता है, पामर में, पार्टनर में और अपोथकैरी में, और जो जजमेंट का जिम्मा है वो किसके ऊपर है, वो पैडलर के ऊपर है। जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इस बार भी आया था, हर बार इसी तरीके से आता है कि ये 4 P's कौन कौन सी थी। नंबर 1 हमने इन चारों के नाम याद रखने। नंबर 2 क्या करेगा वो, अब इनमें से कोई एक मिस करके कुछ और चीज लिखेगा और पूछेगा कि विच वन इज नोट द, यू कैन से 4P mentioned by Thomas Heywood in his interlude 4 P's, ये भी पूछ सकता है। अब ये वाला याद रखने की जरूरत है, बाकी तो तीनों P से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये अपोथकैरी है, तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखोगे कि जो हमारा 4 P's है बाय टॉमस हेवुड, इंटरल्यूड से क्वेश्चन आता है, तो 4 P से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अभी तक आया, और अभी लेटेस्ट पिछले ही एग्जाम में भी 4 P's से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा कुछ और, जॉन बेल एक ड्रामेटिस्ट हुए हैं और उनका है किंग जॉन, ये एक वाक है, जॉन बेल का है किंग जॉन, और स्केल्टन का है
स्केलेटन का क्या है? दैट इज मैग्निफिसेंस, दैट इज मैग्निफिसेंस। तो ये भी इंटरल्यूड है जो हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम कहां पर पहुंचे हैं? अब हम पहुंचे हैं जो हमारा इंग्लिश ड्रामा है, जो ये कह सकते हो आपको फुल फ्लैज कॉमेडी, और उसके बाद ट्रेजेडी लिखा जाता है निकोलस वुडाल, और उसके बाद हम सैकविल और नॉर्टन की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी विट की बात करेंगे, उसके बाद शेक्सपियर की बात करेंगे। तो इस लेसन में हम ओरिजिन ऑफ ड्रामा कहां तक पढ़ा हमने, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। जहां से शुरू 10th सेंचुरी से शुरू किया था, जहां पर हमारे पास ग्रुप्स थे जिसमें लिटर्जिकल प्लेज, ममर्स प्लेज थे। उसके बाद मैंने बताया था चर्च या रिलीजन से एसोसिएशन उसका रहा था। उसके बाद सबसे पहले हमने मिरेकल प्ले देखे, मिरेकल प्ले जिनका थीम बिब्लिकल था, ठीक है ना, जिसमें क्राइस्ट, क्रिस्ट और विटसन जो ओकेजन थे, बेसिकली जो बाइबल के जो थीम्स हैं, जीसस क्राइस्ट के जो थीम है अनंसिएशन हो या असेंशन हो, उनकी बात की। उसके बाद हम पहुंचे थे मोरलिटी प्ले। मोरलिटी प्ले मतलब नाउ बिब्लिकल एंड स्यूडो बिब्लिकल थीम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ह्यूमनली वर्च्यूज एंड वाइसेज। और ड्रामा जो है चर्च से चर्च यार्ड तक आ गया था। ये चीजें हमने वहां पर देखी थी। उसमें हमने केन, अबेल, नो, इन लोगों की बात की, डेथ की बात की, पीस की बात की, पीटी की बात की, ये सारी चीजें हमने की। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आया था दैट वाज इंटरल्यूड। इंटरल्यूड उसमें जो रियलिस्टिक प्लस कॉमिक एलिमेंट, ये नई चीज जुड़ी थी, और उसके एग्जांपल्स हमने इसके साथ साथ किए हैं। तो फ्रेंड्स इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट यूनिवर्सिटी विट्स, एंड देन वी विल डिस्कस वन पोएट दैट इज स्टिल टू बी डिस्कस्ड इज फिलिप सिडनी। उसमें फिलिप सिडनी प्लस यूनिवर्सिटी विट्स को जो हम डिस्कस करेंगे, तो आप तब तक एडवांस में वो पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ YouTube चैनल पे जाके अपना प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।